Today we will start chapter 10, that is isosceles triangle. Good morning, sir. Good morning. Isosceles triangles from Salina. Isosceles triangle. All of you know very well about the isosceles triangle. Yes, Arya, what do you mean by isosceles triangle? Yes, sir. What do you mean by isosceles triangle? आइसोसेलेस ट्रायंगल के कोई भी साइड इक्वल नहीं होते हैं. बच्चे वो that is scalene triangle, not isosceles. सॉरी सर तो एक दो साइड इक्वल होते हैं. In which two sides are equal, that is called isosceles. अब इसमें बच्चे two theorems हैं. Theorem 1, that is called isosceles triangle property. इसकी statement, angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. This is a statement of isosceles triangle property. जहां पे भी हम रीजन लिखेंगे वहां पे isosceles triangle property लिखेंगे. क्वेश्चन थ्योरम बच्चे एग्जाम में कैसे आ जाती है? स्टेट एंड प्रूव isosceles triangle property. At that time 1 mark for statement and 3 marks for proof. Understood? समझे बच्चे? Yes, तो sir. कुछ ट्रायंगल बना के दिखाना पड़ेगा कि कुछ ये वाला ट्रायंगल No ऐसे बच्चे, no, this is not the construction. Roughly figure. देखो, this is a statement. Angles opposite to equal sides of a triangle are also equal. मतलब equal sides के opposite angles. A triangle is given isosceles ABC, in which AB and AC are equal. Given, ये बच्चे मैं थ्योरम का प्रूफ कर रहा हूं अभी. एग्जाम के अंदर थ्योरम्स भी आ सकती है. ओके, गिवन इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC. बस, this is a given. To prove, what we have to prove? What Ankit, AB Yes, के sir. opposite, which angle is opposite to AB? Sir, angle C. Angle C. We have to prove angle C and AC. Anvesha, AC के opposite? सर एंगल बी. Angle B. We have to prove angle C is equal to angle B. Construction. देखो, given, to prove, construction, इनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं. बच्चों की मेन प्रॉब्लम होती है वो नहीं करते. कर देना है बच्चे. प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी लगती है कि हाँ कि बच्चे ने मतलब ढंग से काम किया है. कंस्ट्रक्शन बच्चे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो. कंस्ट्रक्शन ड्रॉ AD perpendicular to BC. Proof. We have to prove these two triangles congruent. First of all, figure में बच्चे solve करो. Angle 1 is equal to angle 2. Devanshu, what is the reason for this? Devanshu, are you listening? No. 1 is equal to 2. Alternate. So can I? Each 90. Devanshu, नींद खुली नहीं है अभी तक. आज तो 1 hour लेट हो गया फिर भी. 1 is equal to 2 each 90. AB is equal to AC given and AD common. Then Gurshan, by which rule the triangles are congruent? Sir, ASA. 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 Yes. Can I? So No can I? बेटा. No, sir. No, sir. एक ट्रायंगल छुपा लो बच्चे. देखो क्या यूज हुआ है उस ट्रायंगल में. दिख रहा है ना? Yes, sir. Which one? Sir, S. So SAS.
who says SAS? Sir, RHS. बच्चे SAS means ये एंगल यूज होता ना तो SAS होता, ये वाला एंगल, but this is not used. Two sides के including angle. Proof. In triangles ADB and ADC. ADB and ADC, ये दोनों triangles. Angle 1 is equal to angle 2, each 90. AB is equal to AC, that is given. Reason is must. ये reasons नहीं डालोगे तो हाफ हाफ मार्क कट जाएगा. And AD is equal to AD, that is common side. Then triangle ADB becomes congruent to triangle ADC. By which rule? RHS. Triangles congruent, then remaining parts are also equal, na? Herman? Herman? Yes, How sir. many parts a triangle have? Sir, 6 parts. 6 parts. 3 parts we have used. Now B third position पे है, angle B. Third position पे यहाँ पे क्या है? C. Angle B is equal to angle C, CPCT. This one we have to prove. यही बच्चे हमने प्रूव करना था. ये थ्योरम का प्रूफ है. बस छोटी सी थ्योरम है. Nothing is in this sum. ये मतलब in this theorem. Given two sides are given equal in triangle ABC, AB is equal to AC. To prove angle opposite to equal side, we have to prove angle C is equal to angle B. Construction: draw AD perpendicular to BC. Proof: we have to prove these two triangles congruent. Angle 1, 2 equal, AB, AC, and AD, AD are common. By RHS rule, the triangles are congruent. Triangles are congruent, then angle B is equal to angle C. CPCT. CPCT की full form नमन. Sir, corresponding parts of congruency of line. Congruent triangles. Congruent Congruency triangle नहीं, corresponding parts of congruent triangles. Okay? हो गया Yes. proof. This is called isosceles triangle property. Means जब भी बच्चे किसी triangle की two sides equal होंगी, तो उनके opposite angle भी equal होंगे. Understood? If Yes, two sides of any triangle are equal, then angles opposite to that sides, equal sides, are also equal. Understood? Yes, sir. Here, Yes. suppose in this triangle, AC and BC are equal. Then Roop, which two angles are equal? AC and BC are equal. Then which two angles are equal? sir, angle A and angle B. Yes, opposite. BC के opposite angle A, AC के opposite angle B. Then these two angles are also equal. Understood? और reason क्या लिखेंगे हम? Isosceles triangle property. ट्रायंगल पूरा लिखने के बजाय उसका सिंबल डाल देते होते हैं. Isosceles dot ISO dot. इसका मतलब isosceles. Triangle property dot. PROP dot. Understood? मीन्स किसी भी सम के अंदर जब दो साइड्स इक्वल होंगी तो उनके अपोजिट एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल होंगे. रीजन हम ये लिखेंगे उसका, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अंडरस्टूड? Yes, sir. नाउ सेकंड इज कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. सेकंड थ्योरम कन्वर्स. कन्वर्स का मीनिंग सबको पता है, उल्टा, रेसिप्रोकल उसका. कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. इसका भी बच्चे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? स्टेट एंड प्रूव कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट. वहां पे इप्सिता, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी? Sir, angles opposite to the equal sides are also equal. Angles opposite to equal sides of a triangle. Sorry, equal sides of a triangle are also equal. अब इक्वल एंगल के प्लेस पे इक्वल साइड्स आ जाएगी. सॉरी, एंगल्स के प्लेस पे साइड्स आ जाएगी, साइड पे के प्लेस पे एंगल्स. यहाँ पे क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू
equal equal angles angles of a triangle are also equal. Sides opposite to equal angle of a triangle are also equal. Now we have given angle B is equal to angle C. Converse है ना, वहां sides equal given थी, यहाँ angle equal given है. Angle B is equal to angle C. This is given. To prove, प्रतीक, एंगल B के अपोजिट कौन सी साइड है? Angle C. AC साइड पूछी है बच्चे मैंने. A. एंड AC के अपोजिट, एंगल C के अपोजिट Sir, AB. AB. We have to prove AC is equal to AB. Same way construction. Draw Perpendicular. same perpendicular. Draw AD perpendicular to BC. Proof. Again we have to prove these two triangles congruent. मैं मार्क कर दूं एंगल 1 and 2. Given 3 and 4 each 90. AD common. Viraj, Sir. by which rule the triangles are congruent? Sir. Yes, Sir, angle side angle. angle side angle. नहीं sir, AAS. AAS. Yes. बच्चे जब भी हमने रूल को फॉलो करना है ना, तो एक ट्रायंगल ढूंढना है, फाइंड करना है, एक ट्रायंगल को छुपा लो, दूसरे ट्रायंगल में देखो क्या यूज हुआ है. Yes, 5 sir. रूल हैं, 5 रूल्स हैं, 5 के 5 रूल्स अप्लाई करके देख लो. पहला रूल SSS, तीनों साइड यूज हो रही है? नहीं, नहीं वो sir. नहीं लिख सकता. सेकंड SAS, 2 साइड यूज हो रही है? नहीं हो रही, वो भी नहीं लिख सकता. ASA, दो हो एंगल 1 and 3 हैं, बट BD Yes, sir. साइड इंक्लूडिंग साइड इज नॉट यूज्ड. Yes, sir. नहीं हो सकता. AAS, दो हो एंगल सकता. उसके बाद वाली साइड. यस. ऑर्डर इज मस्ट इन ट्रायंगल्स ABD and ACD. Angle 1 of triangle ABD equal to angle 2 of this given. Angle 3 is equal to angle 4. Ankit, Sir, each 90. each 90. And AD common. Now triangles are congruent. Triangle ABD congruent to triangle ACD by AAS. Okay, triangles are Yes, sir. congruent. Congruent, then AB side, which way you have to prove? AC is equal to AB. ABD की AB side, first second is AC. Reason simplicity. हो गया proof. Means converse of isosceles triangle. If two angles of any triangle are equal, then sides opposite to equal angles are also equal. Means कहने का मतलब जब भी किसी ट्रायंगल के बच्चे दो एंगल्स इक्वल गिवन होंगे, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी. रीजन क्या लिखेंगे? कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. सपोज PQR ट्रायंगल गिवन है, एंगल P एंगल Q के इक्वल गिवन है. देन आर्या, which two sides are equal? Arya, Yes, sir. angle P and Q are given equal. Then which So two sides QR are equal? equals to PR. Yes. Angle P के opposite QR, Q के opposite PR. Okay. One more thing. जिस ट्रायंगल की बच्चे एंगल्स हैं, साइड्स भी उसी ट्रायंगल की इक्वल होंगी. ये नहीं है कि दो अलग अलग ट्रायंगल पड़ी हैं, एक एंगल उसका उस दूसरे ट्रायंगल की इक्वल है, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल. जिस ट्रायंगल के साइड्स हैं उसी के एंगल्स इक्वल होंगे, जिस ट्रायंगल के एंगल हैं उसी की साइड्स इक्वल होंगी. अंडरस्टूड? Yes.
Yes, sir. रीजन मतलब एंगल इक्वल गिवन है, साइड्स इक्वल करनी है तो कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस, साइड्स इक्वल गिवन है, एंगल इक्वल करनी है तो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। दोनों का डिफरेंस पता चल गया ना? Yes, sir. Yes, sir. Sir, रूप angle side रूप से करना है क्या होगा? Yes, sir. हाँ जी बेटा। सर एंगल टू साइड वाला कन्वर्स होता है ना? हाँ, एंगल इक्वल गिवन है, उनके अपोजिट साइड्स इक्वल करनी है तो कन्वर्स। ओके सर। फर्स्ट सम एक्सरसाइज 10A, क्वेश्चन नंबर 1 in figure alongside. First of all, draw a figure. CD यहां से बच्चे A B C. Figure is must. Without figure you have to score 0 marks. मैं always ये लाइन बच्चे रिपीट करता हूं। Without figure you have to score 0 marks. Okay? फ्री हैंड से बना दो, चाहे बेटर है पेंसिल और स्क्वायर से बनाओ। टाइम नहीं है तो फ्री हैंड से पेन से ही बना दो, दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग। ओके, Yes. given in the figure alongside AB is equal to AC. AB is equal to AC, मैंने डबल लाइन मार्क कर दी क्योंकि बीच में पॉइंट D आ रहा था, दैट्स व्हाई मैं अलग से लाइन ड्रॉ करके उस पे कट लगा देता हूं। given AB is equal to AC, angle A 48, angle ACD 18. What we have to show? Show means to prove. Underline. BC is equal to CD. This one we have to prove. BC is equal to CD. Yes. Proof. First of all, figure में बच्चे solve करेंगे हम. We will solve in the figure. Okay? Understood? Sir, Yes, sir. Yes, बच्चे. sir वो 18 तो सर अकेला एंगल सी नहीं था। नहीं बच्चे, एंगल ACD लिखा हुआ है, देखो C तो पूरा एंगल हो गया। C पे एक्चुअल में 3 एंगल्स बन रहे हैं, है ना? 3 एंगल कौन कौन से? ये वाला और कंप्लीट पूरा। Yes, sir. हमें कौन सा गिवन है? सिर्फ ऊपर वाला गिवन है, एंगल ACD। देखो नेम देखा करो ना बच्चा, रूप ACD। ए फिगर में ऐसे बना के देखो, अपना हाथ ऐसे लेके जाया करो। Yes, sir. ऊपर वाला एंगल ही हुआ ना? Yes, sir. Easy. अब बच्चे AB एंड AC आर इक्वल गिवन है। अन्वेषा Yes, लिखना sir. कैसे है वो देखो। जब भी हमने आइसोसेलेस ट्रायंगल या कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, एट दैट टाइम हाउ वी हैव टू राइट डाउन? इन ट्रायंगल ABC, AB एंड AC आर इक्वल गिवन है, मतलब हम उसको प्रॉपर रीजन दे रहे हैं कि ABC ट्रायंगल में AB एंड AC आर इक्वल, दैट्स व्हाई। तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे अन्वेषा? अन्वेषा Yes, Sir, sir. यस सर नहीं, मैंने पूछा है वो बताओ। AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? Sir, ADC के अपोजिट AB के अपोजिट सर AC। एंगल पूछा है मैंने, साइड नहीं पूछी। सर C सर कहना है। बच्चे प्लीज ना बोला करो बीच में, एक बच्चे से पूछ लेने दिया करो बच्चे। सर BC। मैं ना चांटा लगाऊंगा तेरे खींच के घर में आके। मैंने क्या पूछा है अन्वेषा? पहले तो ये बता मैंने पूछा क्या है तेरे से। कि सर AB के अपोजिट कौन सा एंगल है? तो 2 पॉइंट से एंगल बनता है। नहीं सर। फिर क्या हुआ है तेरे को? आज संडे था, नींद नहीं खुली? AB के अपोजिट बेटा एंगल कौन सा है? सामने एंगल कौन सा है AB के? सर C। C पे तो 3 एंगल बन रहे हैं, कौन सा C? C पे तो ये भी बन रहा है, ये भी एंगल C है, ये भी एंगल C है, ये भी एंगल C है, पूरा कंप्लीट। कौन सा एंगल?
ACB लिखेंगे बच्चे, अकेला C नहीं लिखेंगे। अंडरस्टूड? ओके सर। क्योंकि इसके सामने तो ये पूरा कंप्लीट एंगल है ना, एंड पॉइंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो पूरा कंप्लीट एंगल हुआ ना। यस सर। तो अकेला C नहीं लिख सकते उसको, क्योंकि C पे 1 से ज्यादा एंगल बन रहे हैं। ओके, अंडरस्टूड? यस सर। अब AC के सामने भी बता दे मुझे कौन सा एंगल है। सर बोलो ए। बच्चे। इसको अकेला B लिख सकते हैं, ओके। बिकॉज B पॉइंट पे कोई और एंगल नहीं बन रहा। ठीक है ना? यस सर। अंडरस्टूड? ये चीज बच्चे फॉलो करनी है। बहुत बच्चे गलती करते हैं इसमें, अकेला C लिख देते हैं, बट कई टीचर तो सही कर देते हैं, पर मेरे जैसा टीचर गाटा ही मारेगा। हाँ जी बेटा। मुझे एंगल ACB समझ नहीं आया सर। क्यों नहीं समझ आया? जैसे सर हम C क्यों नहीं लिख सकते? तेरी आवाज बहुत स्लो आ रही है, पहले तो ऊंची बोल थोड़ा सा। सर हम C क्यों नहीं लिख सकते? C पे कितने एंगल बन रहे हैं? सर 3। फिर टीचर को कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल C इसने यूज किया है? ओके सर। समझे? यस सर। B को मैंने अकेला क्यों लिखा है? देखो B पे कोई और एंगल नहीं बन रहा था। ABC भी लिख देंगे तो भी गलत नहीं है, बट ज्यादा बेटर है सिंगल पॉइंट से, क्योंकि और कोई एंगल नहीं है यहाँ पे, बट इसके अंदर था। दैट्स द रीजन। यस सर। यहाँ पे रीजन, क्योंकि साइड से एंगल इक्वल किए हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब बच्चे ये एंगल हमें पता है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 ए को अकेला ए लिख सकते हैं, क्योंकि ए पे कोई और एंगल नहीं बन रहा। बी को अकेला बी लिख सकते हैं, बट सी को हम ए सी बी ही लिखेंगे। साथ में रीजन एंगल। मैं पहले बोल रहा हूं कि रीजंस आर मस्ट, विदाउट रीजन यू हैव टू स्कोर 0 मार्क्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ए की वैल्यू 48, बी को बी रखो, एंगल एसीबी को एंगल बी लिख सकता हूं बच्चे मैं। प्रूव्ड अबव। एसीबी के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया? एंगल बी लिख दिया, इज इक्वल टू 180। 48 एज लाइक एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल B. 2 एंगल बी 2 एंगल B। इज इक्वल टू 180। 2 एंगल बी 180, 48 becomes minus 2 angle B, 10 minus 8 2, 7 minus 4 3, 132, and angle B is 132 upon 2, cut 66। एंगल B कितना आ गया हमारे पास? 66 आ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर अब यहाँ पे आपने बी क्यों लिखा सर? इसलिए लिखा क्योंकि वो दोनों इक्वल थे। यस बच्चे, यहाँ पे सेंस एंगल, क्योंकि मैंने एंगल फाइंड करना है ना बच्चे। प्रूव्ड अबव। ओके सर। यहाँ साथ में लिख देना। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव टू। हाँ, बी को एसीबी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बी इसको बी लिखना है। एंगल बी को एंगल एसीबी भी लिख सकते हैं, तो एंगल एसीबी आ जाएगा। अब बट दोनों एंगल क्या है? आपस में इक्वल हैं, तो ये कंप्लीट एंगल भी कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। यस सर। ये एंगल 66 आ गया, ये एंगल 66 आ गया, तो ये वाला एंगल सर फाइंड हो जाएगा। पूरा कंप्लीट एंगल पता है, ये एंगल पता है, तो माइनस हो जाएगा। अब पहले तो लिखेंगे नाउ एंगल एसीबी इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू 66, क्योंकि बी एंगल एसीबी के इक्वल प्रूफ किया है ना। प्रूव्ड अबव। दोनों चीजें, बी इज इक्वल टू 66 भी प्रूफ किया है और ये इसके इक्वल भी प्रूफ किया है, तो इकट्ठा लिख दिया दिस वन। नाउ बच्चे देखो, हमने ये डॉट लगाया हुआ है, ये दो साइड्स इक्वल करनी है ना। यस सर। यस सर। BC इज इक्वल टू CD करना है ना। BC sir. के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला। इसके सामने ये वाला, मींस ये दोनों एंगल मैं इक्वल कर दूं तो ये साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। यस सर। इसलिए मुझे बच्चे पहले ये एंगल फाइंड करना पड़ा, और नहीं करना ना करो। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है ट्रायंगल की?
नहीं पता, चलो फिर फाइंड कर लो, कोई बात नहीं, वो मैं समझा देता हूँ कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। पहले ये एंगल BCD इज इक्वल टू एंगल ACB माइनस एंगल ACD। BCD एंगल निचले वाला एंगल, पूरे एंगल में से ये ऊपर वाला एंगल माइनस कर देंगे तो निचले वाला एंगल आ जाएगा ना। ACB बच्चे कितना आया हमारे पास 66, ACD 18 गिवन है, माइनस किया 16 में से 8 गए 8, 5 में से 1 गए 4, 48 आ गया। ये निचले वाला एंगल 48 आ गया बच्चे। अब इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी, दो एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं, तीसरा एंगल फाइंड हो जाएगा। नाउ एंगल BDC, नाउ इन ट्रायंगल BDC प्रॉपर लिख के, एंगल B को अकेला लिख सकते हैं, BDC को BDC लिखना पड़ेगा। यहां फिगर बना देता हूं बच्चे मैं, ये 66 फाइंड किया है, ये वाला एंगल 48 फाइंड किया है, ये 18 गिवन था। एंगल BDC, डी पे भी दो एंगल बन रहे हैं, ऊपर और एक नीचे, इसलिए मैंने पूरा प्रॉपर BDC लिखा। और DCB इज इक्वल टू 180। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। B फाइंड किया है 66, एंगल BDC हमने फाइंड करना है। DCB 48 फाइंड किया है 180। BDC इन दोनों को ऐड करके उस साइड माइनस करेंगे, ऐड करके 8 6 14, 1 कैरी, 5 6 11, व्हाट वी गेट 66। ये एंगल भी कितना आ गया, 66 आ गया। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, बच्चे दोनों एंगल इक्वल। यस सर। यस इसके सर। सामने ये वाली साइड, इसके सामने ये वाली साइड, मतलब प्रॉपर वे से लिखना पड़ेगा हमें। सर नाउ एक मिनट बच्चे, पहले कंप्लीट होने दो। BDC एंगल B इज इक्वल टू एंगल BDC, यहां लिख देंगे ईच 66 डिग्री प्रूव्ड अबव, दोनों को प्रूव किया हमने। अब एंगल B के अपोजिट रूप कौन सी साइड है AC बच्चे? ये सर, दोनों एंगल कौन सी AC ट्रायंगल के हैं, मुझे ये बता पहले तो। मैंने यही चीज समझाई थी ना, जिस ट्रायंगल के एंगल्स हैं साइड्स भी उसी ट्रायंगल की होंगी। B एंड एंगल BDC, ये नीचे वाली ट्रायंगल के एंगल है ना, yes sir, DC sir. तो DC और CD, तो एंगल B के अपोजिट CD, BDC के अपोजिट BC। रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। हो गया, यही प्रूव करना था, हैंस प्रूफ। समझे? फिर से देखो एक बार, मैं सिर्फ फिगर में अभी सॉल्व करके दिखाता हूं। मैंने बड़ी सारी फिगर बना दी, ABC, यहां से एक लाइन है D, this angle is given 48, this angle is given 18, AB and AC are equal given है। तो सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाई, ये वाला एंगल इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया हमने, यही किया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, AB and AC are given equal, AB and AC are given equal ना, तो AB के सामने ये वाला एंगल, AC के सामने ये वाला एंगल, दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए। फिर बच्चे बड़ी ट्रायंगल में, बिगर ट्रायंगल ABC में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दी, 48 प्लस B प्लस ACB। ACB को मैंने B लिख दिया क्योंकि दोनों आपस में इक्वल प्रूव किए हैं, तो एंगल B की वैल्यू मेरे पास 66 आ गई। यही किया था हमने, yes sir. ये भी 66 आ गया, पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल। Yes sir. पूरे एंगल में से ये 18 माइनस किया तो निचले वाला एंगल आ जाएगा, ये मेरे पास आया 48। अंडरस्टूड? सर ये यही किया था। में से 18 माइनस किया
बच्चे तू अपने आप खुद सोचा कर, थोड़ा दिमाग दिया है भगवान ने। ये पूरा एंगल है, पूरे में से ये ऊपर वाला माइनस कर देंगे तो कौन सा बचेगा? निचले वाला बचेगा ना। यस वही तो किया है। देखो कंप्लीट एंगल है, दिस प्लस दिस, इसकी वैल्यू 18 गिवन है हमें, वो फिल करके उस साइड जाके माइनस हो जाएगी। दोनों का सम 66 बनना चाहिए, समझे? फिर इस एंगल में बच्चे हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, ये एंगल आ गया, ये भी 66 आ गया। उसके बाद मैंने ये पार्ट किया है, देखो सिर्फ इतना पार्ट रह गया। उसके बाद ये एंगल इसके इक्वल, प्रूव्ड, ईच 66 प्रूव्ड अबव। इसके सामने ये वाली साइड है, इसके सामने ये वाली साइड है, ये दोनों साइड इक्वल होगी जहां डबल कट लगाया है, ये हमने प्रूव करना था। आई समझ? Yes, sir. अब बच्चे एक चीज और, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल किस किसने की हुई है? ये किसको पता है? सर रिकॉल नहीं हो रही पर शायद की हुई है। रिकॉल नहीं हो रही, ओके। एक्सटीरियर एंगल, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल का कैसे बनता है। साइड को प्रोड्यूस करने पे, यार एक तो ना हवा पेज को टर्न कर दिया बाहर। साइड को प्रोड्यूस करने पे बच्चे एक्सटीरियर एंगल बनता है। एक्सटीरियर एंगल के साथ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ दो, जो रिमेनिंग 2 एंगल बच गए उनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल। एंगल ए प्लस Yes, एंगल sir. बी, Sir, याद आ गया. यस this सर। is called exterior angle property. Means exterior angle of a triangle is equal to the sum of interior opposite angles. Yes, sir. देखो एक्सटीरियर एंगल पहले बोला है साइड प्रोड्यूस करने पे, ऐसे नहीं इस साइड जा रही है जी वो एक्सटीरियर, नहीं, साइड प्रोड्यूस करने पे एक्सटीरियर एंगल। उसके साथ इंटीरियर जो है उसको छोड़ दो, जो रिमेनिंग 2 बच गए, इंटीरियर अपोजिट का मीनिंग यही है, जो इसका इंटीरियर है उसके अपोजिट एंगल्स उन दोनों के सम के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड एक्सटीरियर। सर जो हमें उसके यहाँ साथ होगा वो नहीं ना लेना। नहीं, वो नहीं लेना। ओके सर। अब यहाँ पे देखो हमें ये फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, 66 आ गया था। अब इस ट्रायंगल में ये ऊपर वाली ट्रायंगल है, ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, मैं सिर्फ ऊपर वाली बना देता हूं अभी अलग से, ऐसे भी कर सकते हो तुम। ये 18 हमें गिवन है, ये 48 गिवन है, ये वाला एंगल फाइंड करना था, तो साइड प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों के सम के इक्वल आ जाता है ना। यस सर। ये चीज भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब इतना बड़ा करने की बजाय। ओके 48, यहां से ये स्टेप सारा कट जाएगा, इतना बड़ा, वहां पे सीधा आ जाएगा एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल A प्लस ACD। सर पर अंडरस्टूड? यहाँ पे तो लगेगी नहीं सर। क्या? सर यहाँ पे कैसे लगेगी इस सब में? मैं चांटा मारूंगा तेरे खींच के। ये फिगर क्या बनाई है मैंने, ये कैसे बनाई है मैंने, तभी मैंने हाफ बना के दिखाया तुम्हें फिगर का। इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है ये। सर एक्सटीरियर एंगल है। सामने होती ना पड़ी होता अभी 2-4 फोन से निकल के नहीं आ सकता, नहीं तो मैं, ऐसी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी ना, फोन से निकल के था एक चांटा और उसके बाद वापस आ जाए, है ना? नहीं सर ना ही हो सर। बच्चे मैंने एक ही चीज बोली है ना, एक्सटीरियर एंगल कैसे बनता है, साइड प्रोड्यूस करने पे, है ना? यस सर। बनता है ना। यहाँ Yes, देखो sir. ये साइड प्रोड्यूस हो रही है ना, यस तो ये एक्सटीरियर एंगल ही बन गया इस ट्रायंगल का। सर वो मैं दूसरे वाला ट्रायंगल देख रही थी ADC, इससे लग रहा था। भूख तो नहीं लगी? नहीं सर। ठीक है, मुझे तो बहुत लगी है। सर हम 10 बजे चाय पीते हैं। तू तो देखना झूठी, उस दिन कह रही थी मैं चाय पीती नहीं। सर मैंने कब बोला? Excuse me, sir. हाँ जी बेटा। सर ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, उसको कैसे बोलते हैं? जैसे कि सेकंड प्रॉपर्टी में तो हम बोल रहे हैं कन्वर्स आइसोसेलेस उसको ट्रायंगल। उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी ओनली, कन्वर्स वर्ड छोड़ दे बच्चे, बस काट दो उसमें से। ओके सर। सर उस दिन रूप ने बोला था, मैंने नहीं बोला था। ओके
तभी तो मैं तेरे पास आया नहीं उस दिन जब लुधियाना आया था। मैं चाय खुद नहीं पीती, मेरे को क्या पिलाएगी। तो कोई बात नहीं सर, इस बार आ जाना सर, हाँ तो खुद बना के पिलाऊंगी सर, क्या? खुद बना के पिलाऊंगी। अच्छा ठीक पढ़ लो, यही चाहिए मेरे लिए बस। इस ये फिगर गिवन है बच्चे, हमने फाइंड क्या करना है? एंगल एडीसी, एंगल एबीसी एंड एंगल बीएसी। एंगल एडीसी ये फाइंड करना है, एंगल एबीसी ये फाइंड करना है, बीएसी ये फाइंड करना है। मैंने मार्क कर दिए तीनों एंगल्स जो फाइंड करने हैं। पहले हम फिगर में सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ ये वाला एंगल गिवन है और ये तीनों साइड्स इक्वल दी हुई है, सिंगल कट लगे हुए हैं ना, बीडी एडी एंड सीडी आर इक्वल। फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ी ट्रायंगल में ले लो, ये एक्सटीरियर एंगल है ना। अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो सबको पता चल गई, आर्या, Yes. अन्वेषा, Yes, sir. दिवांशु, प्रतीक, ऑल ऑफ यू। Yes, Yes, sir. sir. सर दिस इज एक्सटीरियर एंगल। इन दोनों के सम के इक्वल होगा ना, जो मैंने डार्क किया अभी। Yes, sir. तो प्रूफ, हम सबसे पहले ये दोनों एंगल फाइंड कर रहे हैं, ओके क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, इसके इक्वल होगा सम इन दोनों का, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन ट्रायंगल एबीसी प्रॉपर लिखना है, एंगल ACE इज एन एक्सटीरियर एंगल। मतलब हम उसको पूरा डिटेल में दे रहे हैं टीचर को कि एबीसी ट्रायंगल में ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल था, देयरफॉर हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं। एंगल ACE यस विराज किसके इक्वल होगा? सर एंगल ए। मैं ना तेरे भी चांटा लगाऊंगा। ए पे कितने एंगल बन रहे हैं? कौन सा एंगल है? नहीं सर, वो सर सॉरी सर, एंगल बी ए डी। BAC, ये वाला एक्सटीरियर है, ओके यस और नो? यस सर, प्लस एंगल बी। प्लस एंगल बी, यही होगा ना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से? सर इसको यहीं पे ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि ये दोनों कौन सा इक्वल दिए हैं, BAC प्लस एंगल, इसका यूज बाद में होगा। अब इस छोटी ट्रायंगल में आ जाओ बच्चे। पहले ये दो साइड्स इक्वल है ना, या पहले ऐसे करो, इसके सामने ये वाला एंगल है, ये फाइंड हो सकता है ACD Yes. Yes, sir. बाय लीनियर। Linear pairs. Linear pairs. नाउ एंगल ACD प्लस ACE is equal to 180। लीनियर पेयर सबको पता है ना? Yes, sir. यस Yes, sir. कोई So, ऐसा see, स्टूडेंट जिसको ना पता हो? एंगल ACD एज लाइक ACE 130 is equal to 180। एंगल ACD बच्चे कितना आ गया हमारे पास? 50 degree. 130 उस साइड जाके माइनस होगा तो 50 आ जाएगा। Yes, sir. इस ट्रायंगल के अंदर बच्चे ये दो साइड्स इक्वल हैं, Yes, sir. इसके सामने ये वाला एंगल है, इसके सामने ये वाला एंगल है। देखो इसको भूल जाओ, ये दो कट लगे हुए हैं ना साइड्स पे, Yes, इसके sir. सामने ये वाला एंगल, इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे ना? यस सर Yes, sir. वो भी Yes. याद है. हाँ लिखेंगे, पूरा प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना, ऐसे सीधा नहीं लिख सकते। ADC, AD is equal to CD, this is given। हरमन AD के सामने कौन सा एंगल है?
हरमन इज नॉट देयर, कहाँ चला गया? गुरशान, एडी के Yes, अपोजिट sir. कौन सा एंगल है? एडी के अपोजिट कौन सा एंगल है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। Which angle is opposite to AD? आर्या, सर मैं बताऊं? आर्या, सर एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। बच्चे मैंने क्या पूछा है? AD इज इक्वल टू सर CD C है। और B। AD के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला है ना? ये सर C। ACD पूरा नहीं Yes, देना है क्योंकि किसी पे और एंगल भी बन रहा है, बाहर भी बन रहा था एक। yes, sir। घबराई क्यों क्यों है? क्या हो गया आर्या? सर कुछ नहीं। तो ये समझ नहीं आ रहा। छोड़ फिर, ना समझ नहीं आ रहा तो। आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ACD बच्चे 50 फाइंड किया है, तो एंगल CAD भी कितना आ गया? 50 आ गया। यस सर। नाउ कैन यू फाइंड दिस एंगल? Yes, sir. ये छोड़ दो, ये वाला लो पहले। D। D नहीं है, ADC है, ADB है। D तो इधर वाला भी है। विराज, तेरे को एक बात समझ नहीं आ रही कि एक पॉइंट पे एक से ज्यादा एंगल बनते हैं, उसको एक सिंगल पॉइंट से डिनोट नहीं करना। दिस एंगल ADB इस स्मॉलर ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल नहीं है, इन दोनों के सम के इक्वल, तो ये कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। यस और नो? सर एक्सटीरियर एंगल तो सर वो 130 वाला भी है उसका। हाँ सर हाँ, उसके सम से भी तो फाइंड कर सकते हैं वो फिर वाला ये angle। आएगा ना, ये आ जाएगा, वो कर लो। कोई बात नहीं, एक बार मेरे को सॉल्व करने दो, फिर से समझाता हूँ बच्चे। नाउ इन ट्रायंगल ADC हमने फाइंड क्या करने थे? ADAC, दिस एंड दिस। ADC तो सीधा ही आ जाएगा, चलो इस ट्रायंगल में ले लो ये एक्सटीरियर एंगल। इन ट्रायंगल ADC एंगल ACE is an exterior angle. तो एंगल ACE फिगर तुम्हारे सामने बुक में है बच्चे, एंगल CAD प्लस एंगल ADC, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ACE 130 है, CAD 50 है, ADC हमने फाइंड करना है। 50 साइड आके माइनस हो गया, 130 माइनस 50 इज इक्वल टू एंगल ADC, 80 आ गया एंगल ADC, ये एंगल 80 आ गया। कोई बात नहीं, इसके बाद मैं फिर से समझाऊंगा बच्चे सारा का सारा सम। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। ये जो हमारा एंगल ADC हमारा ट्राइंगल है, इसके अंदर अगर हम ये वाली साइड फाइंड कर लेते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो हम 180 माइनस करके उससे वो फाइंड कर सकते हैं। हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी से भी कर सकता है तू 80 फाइंड, दो एंगल फाइंड कर चुके हैं, समझे? ओके सर। ये 100 आ गया बच्चे। अब ये दो साइड्स इक्वल हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, तो ये वाला एंगल इतना इसके इक्वल होगा। यस सर। एक्स एक्स लेट कर लेता हूं मैं इन दोनों को, तीनों का सम 180 आ जाएगा। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 180 तीनों का सम बच्चे। नो सर, उसका एक्सटीरियर एंगल सर वो हाँ, 80 बन रहा है ये ना। ना फाइंड करो, एक्सटीरियर लगा लो। x प्लस एक्स इज इक्वल टू 80, 2x इज इक्वल टू 80, x की वैल्यू 40 आ जाएगी, आ जाएगी ना? यस सर। अब ये कंप्लीट एंगल दिस प्लस दिस 40 प्लस 50 90 आ जाएगा। ये यस एंगल सर। फाइंड कर ही लिया हमने। यस सर। फिर से देखो, मैं फिगर में थोड़ी बड़ी फिगर बना के तुम्हें फिगर में सॉल्व करवाता हूँ। विराज को समझ नहीं आया था ना, अब विराज अब खुद ही बोलेगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसे थोड़ा सा ना फिगर को इधर करना था, बट रफली है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एंगल 130 दिया हुआ है,
विराज यस सर। ये एंगल फाइंड कर सकता है जो भी मार्क किया मैंने, यस सर। कैसे? 180 माइनस रीजन? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर 50 आ जाएगा। कर लोगे बच्चे सारे के सारे जिन्हें फाइंड ये एंगल? रूप? यस सर। सर रूप इज देयर। यस सर। अभी दो जने और छोड़ गए, कौन छोड़ गया? यार ये बड़ी दिक्कत है कि तुम क्लास लगा लो, ये चैप्टर फिर से लेंथी चैप्टर्स हैं, फिर से बहुत मुश्किल है इनको करवाना। 50 आ गया। विराज ये दोनों साइड्स इक्वल है, यस सर। इसके सामने कौन सा एंगल है? सर ए। फिर ए। नहीं सर, सॉरी सर। सर एंगल DAC। एक बात समझ नहीं आती है ना, खोपड़ी में बढ़ती नहीं, एंटर नहीं करती, कि बार बार बोल रहा हूँ कि जब एक पॉइंट पे ज्यादा एंगल बने तो उसको पूरा प्रॉपर नेम देना है, 3 Yes, पॉइंट sir. से। DAC इसके सामने सर इसके सामने सर एंगल B। इसके सामने इधर में ले रहा है, ये दो साइड थी तो एंगल भी इस ट्रायंगल के ही होंगे। यस सर, यस सर। तो सर इसके सर, सामने तो ये वाला एंगल, इसके सामने एंगल C। फिर सी, फिर सी। तेरे को एक बात समझ नहीं आ रही? सॉरी सर। सर एंगल DS। सर एंगल DCA। ये 50 फाइंड किया है तो ये भी 50 आ जाएगा। यस सर। चाहे तो बच्चे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा दे, चाहे एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल फाइंड कर सकता है। यस सर। कितना आएगा? 80। 50 प्लस एंगल ADC 80 आ जाएगा। यस सर। एक एंगल हमारा फाइंड हो गया जो हमने फाइंड करना था। उसके बाद ये दो साइड्स इक्वल है। एंगल इक्वल होंगे। कौन सी ट्रायंगल की ये दो साइड्स हैं? सर ट्रायंगल ADB। ADB। इसके सामने कौन सा एंगल है? सर BD के इसके सामने BD के सामने है एंगल VAD। अपोजिट है ना, ये Yes, वाला sir. एंगल। इसके सामने, सर इसके सामने है एंगल B। हाँ इसको B को अकेला B लिख सकते हैं, B पे कोई और एंगल नहीं बन रहा। आगे मेरी बात समझ सबको? यस सर। सर आप यस सर। यस सर। इसको x ले लो, इसको x ले लो, क्योंकि दोनों इक्वल प्रूफ किए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी से। इस छोटी ट्रायंगल के अंदर ये वाला एक्सटीरियर एंगल है कि नहीं है? यस सर है। तो x प्लस एक्स किसके इक्वल? 80 के। 80 के। x की वैल्यू आ जाएगी, यस सर। कितनी सर आएगी? यस सर x प्लस हाँ एक्स। सर कुछ नहीं। बोलो। सर कुछ नहीं सर, x 40 आ जाएगी। 2x इज इक्वल टू 80/2 40 आ जाएगी। यस सॉरी 80, यहाँ पे तो 80 है, x इज 80/2 40 आ गई बेटा। ये एंगल भी 40 आ गया इतना, ये एंगल भी 40 आ गया। अब उन्होंने ये कंप्लीट एंगल बोला था फाइंड करने के लिए, ये कंप्लीट एंगल कितना आ गया विराज? सर ये कंप्लीट एंगल हो गया सर 90। हाँ ये एंगल 40 हमने फाइंड कर ही लिया, तीनों एंगल फाइंड हो गए। यस सर। क्या प्रॉब्लम थी अब बता, क्या समझ नहीं आया? सर कुछ नहीं आ गया। आ गया? यस सर। थोड़े लेंथी हैं सम्स लिखने, मतलब फिगर में हम सॉल्व करेंगे तो बहुत इजी लगते हैं कि कुछ भी नहीं है, ये फाइंड किया, ये आ गया, फिर ये एंगल सम प्रॉपर्टी से, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से आ गया। बट जब लिखेंगे ना तो प्रॉपर पता चलता है। अंडरस्टूड? यस सर। कोई ऐसा Yes. स्टूडेंट जिसको ना समझ आया हो बच्चे? फिर आ गया। आर्या, सर आ गया। अन्वेषा, यस सर। अंकित, यस सर। ओके सबको आ गया ना? रूप, सर आ गया सर, एक बार खुद निकाल कर देखेंगे फिर अच्छे से। वो तो देखना ही देखना है बेटा, Yes. ऐसे देख के आने लग जाए तो फिर सारी देखते हैं वो तो, जब तक करते नहीं हो, करोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। थर्ड सम, ज्योमेट्री की यही प्रॉब्लम है कि इसमें एक एक सम, सारे के सारे सम सॉल्व करवाने पड़ते हैं, इसलिए टाइम ज्यादा खा लेते हैं। मैंने पहले ही बोला था कि जो पहले चैप्टर थे बहुत इजी थे, इजी तो ये भी है, बस ज्योमेट्री जिसने सीखनी है, मतलब फिगर में सॉल्व करो पहले सम को,
फिगर में नहीं करोगे फिर वो रट्टाफिकेशन हो जाता है, फिर नहीं समझ आएगी ज्योमेट्री। सर अगर 2-3 बार निकालो फिर याद कर सकते हो सर। याद नहीं करना होता मैथ को। यहाँ सर, देखो बच्चे, लगती है हाँ जी, आपको ज्योमेट्री इजी लगती है? सब कुछ ही इजी है। मैथ में क्या टफ होता है? मैथ में तो कुछ टफ होता ही नहीं। मैथ में कौन सा कुछ याद करना है? सर याद करने वाला काम। बस यस बच्चे, सर कंपाउंड इंटरेस्ट कटवा दे, बाकी सब सही है। हाँ सब कुछ सही है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो इजी तो है, उसमें है क्या? सर वो करवा देना एक बार। क्यों क्यों करवाऊं? आता नहीं सर। करवा दूंगा। कल एक आया, मेरठ से फोन आया था, सर ट्यूशन रखनी है। मैं कोई बात नहीं बच्चे, कितना पोर्शन हो गया? मैंने बता दिया ये हो गया, 9 चैप्टर्स हो गए हैं, उसके बाद 2 चैप्टर स्टैट के हो गए हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला हो गया और एक ट्रिग्नोमेट्री का हो गया। आप कितने टाइम में कोर्स कंप्लीट करवा दोगे? मैं 3 to 4 मंथ में। जो मेरा पेंडिंग है मैं वो भी रिवाइज कर हो जाएगा 3-4 मंथ में। तो फीस कितनी है? 500 कम कर लो। मैं बच्चे 500 ज्यादा लग रही है तेरे को फीस? कहता नहीं। मैं फिर क्यों कम करूं? ठीक है। उसके बाद कहता चलो मैं अभी कर देता हूँ, गूगल पे कर देता हूँ फीस, आप मुझे मैसेज लिख के भेज दो व्हाट्सएप पे। मैंने लिख के भेज दिया, नंबर भेज दिया। सर फिर से सर फीस कम कर लो। मैंने तेरे को करवाना ही नहीं है, पढ़ाना ही नहीं है। मैं तो पढ़ने के लिए नहीं आया, तू टाइम पास करने के लिए आया। ऐसे जमूरे भी होते हैं, देख लो हाल कि 500 उनको ज्यादा लग रही है। लोकल ना 15 to 20,000 फीस पे कर देंगे सिलेबस की, और कुछ करवाएंगे भी नहीं वो। ए बी एंड ए सी आर इक्वल, मैंने डबल कर दिया बच्चे उस साइड को। ए बी एंड ए सी इक्वल गिवन है, बी सी एंड डी सी, वहां पे तो कट लगा ही हुआ है ऑलरेडी। ए बी एंड ए सी आर इक्वल, सी डी एंड बी सी आर इक्वल। यस बच्चे, यस सर। बच्चे गुरशान तेरी आवाज ना बिल्कुल ही नहीं आ रही, पता नहीं तू कैसे बोल रहा है। इप्सिता, यस सर। ए बी एंड ए सी आर इक्वल, पहले हम फिगर में ही सॉल्व करते हैं, बाद में सॉल्व करेंगे उसे। ओके सर। हमने फाइंड, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टू फाइंड क्या करना है। एंगल डी सी डी ई, एंगल डी सी ई। देखो बच्चे ये एक्सटीरियर एंगल हमें गिवन है, ये डबल जो की हुई है लाइंस ये आपस में इक्वल गिवन है। ए बी एंड ए सी आर गिवन, तो कौन से दो एंगल्स इक्वल होंगे? सर ए सी बी एंड ए बी सी। बी को अकेला भी लिख सकते हैं, है ना? यस सर। ये कंप्लीट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल बी, दोनों आपस में इक्वल हो गए। एंगल ए बी के सामने एंगल ए सी बी, ए सी के सामने एंगल बी। इन दोनों को एक्सलेट कर लूं बच्चे मैं? यस सर। इसको भी एक्सलेट कर लिया, इसको भी एक्सलेट कर लिया। हाउ वी कैन फाइंड एक्स बच्चे? सर एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सर x plus x equals to 128। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल BAF इज एक्सटीरियर एंगल, ऐसे लिख के उसके बाद एंगल BAF इज इक्वल टू x plus x, मैंने मतलब ACDB plus B लिखना है पहले, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। BAF 128 है, 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे? 128/2 आ गई, 64 आ गई। ये एंगल भी 64 आ गया, ये कंप्लीट एंगल भी 64 आ गया। मैंने यहाँ पे साफ फिगर में मार्क कर दिया। अब ये दो साइड्स भी इक्वल है ना? यस सर। इप्सिता, कौन सी ट्रायंगल की है? इस ट्रायंगल की है ना? यस सर। इसके सामने ये वाला एंगल, यस सर। इसके सामने ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल हो गए, तो वो भी 64 आ गया। ये एंगल भी 64 आ गया। CDE, CDE ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने।
और DCE, DCE ये वाला एंगल फाइंड करना है। नाउ व्हाट आई कैन डू, सर ये एंगल फाइंड हो सकता है, बोलो यस सर सर ये Yes, हो sir. जाएगा इप्शिता कैसे? सर 180 डिग्री से माइनस कर देंगे। हाँ, ये इस छोटी ट्रायंगल में बच्चे दो एंगल हमने फाइंड कर लिए हैं, ये एंगल फाइंड हो जाएगा। यस सर कितना आ जाएगा? 180 में से 60 464 128 माइनस हो 128 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 52 52 आएगा। यस सर नहीं पता सर, मैंने अभी किया नहीं है सर। 180 माइनस 132, सर 10 में 52 से ही है। सर एक मिनट, 10 में 128 से माइनस करना है 48 नहीं आएगा। सर। सर 128 तो माइनस करना है। ये होगा सर 128 ओ सॉरी 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 सॉरी, 52 आ जाएगा। Yes. गलत कर दिया था मैंने, पता नहीं कैसे 132 ले लिया। ये एंगल 52 आ गया बच्चे हमारे पास। यस सर। ये कंप्लीट एंगल, 64. तो ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। Yes, sir. 64 minus 52. 64 में से 52 माइनस कर देंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा रूप, यस सर 52 कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा, आ जाएगा 12। यस सर। अब ये एंगल रूप बोलेगी सिर्फ 52 के इक्वल है, क्यों है रूप? लाइंस पैरेलल गिवन है। ये कौन से एंगल है रूप? अल्टरनेट इंटीरियर यस, ये एंगल आ गया। दोनों एंगल हमारे फाइंड हो गए। करोगे ट्राई अपने आप? सर Yes, आप sir. आप सर एक बार थोड़ा सा और सर समझा सकते हैं? कुछ नहीं बच्चे, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल है, ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए आपस में, इक्वल हो गए। यस सर एक्स ले लिया उनको, यस एक्स सर प्लस एक्स 128, एक्स की वैल्यू 64 आ गई। यस सर ये एंगल कंप्लीट 64, ये भी 64। अब ये दो साइड्स इक्वल दी हुई थी, इसके सामने Yes, ये sir. वाला एंगल, इसके सामने ये भी Yes, sir. 64 आ गया। यस सर एंगल सम प्रॉपर्टीज छोटी ट्रायंगल में DBC में ये 52 आ गया। एंगल sir, सम आ गया। प्रॉपर्टी से पूरा एंगल 64 है, 52 माइनस किया 12 आ गया। यस सर अब ये एंगल 52 इस एंगल के भी इक्वल है। यस सर अल्टरनेट इंटीरियर लाइंस पैरेलल गिवन यस है। सर यस सर यस सर हो गए दोनों फाइंड, ये दोनों फाइंड Sir. करने थे। ओके सर तो बच्चे फर्स्ट 3 सम्स ही तुमने करने हैं। सर हो जाएंगे। सर इवनिंग क्लास है? हाँ जी, कल लाइट नहीं थी, कल यहाँ बारिश तूफान वगैरह आया था, तूफान नहीं मतलब अंधेरी वगैरह थी, तो लाइट चली गई थी कल। सर आज एक्स्ट्रा क्लास तो नहीं है कोई सर? संडे है आज। बच्चे एक चीज और,